ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੋਹਿਤ कुमार ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ हैं। सर आज 8वां दिन है, ये 15 तारीख को 15 मार्च 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ एक हफ्ते तो भी ज़्यादा हो गया है। देर इज़ नो FIR नो DDR, कुछ भी नहीं किया गया है। मैंने उन्हें बोला भी मेरी पीठ पे मत मारो जी, जहाँ मर्जी मार लो। मेरी पीठ पे मेरा L4 L5 का इलाज चल रहा है, मैं थेरेपी ले रहा हूँ। उनके एक कांस्टेबल ने वहीं जाकर मुझे 4-5 मुक्के मारे हैं जी, नॉन स्टॉप मेरे सेंटर ऑफ दी बैकबोन जो है वहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने विद्रोह किया, मेरे कपड़े उतरवाए गए, मेरी पैंट उतरवाई गई, मुझे पैंट उतार के मारा गया। मेरे साथी को भी सेम, जिनका नाम गोबिंद है, उसको मारा गया। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ? सर कमरे में जब मुझे मार रहे थे, मैंने बताने की कोशिश की कि सर समझ तो लो, जान तो लो कौन है हम, तेरे जैसे 10 आते हैं, 10 को रोज मारता हूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर आज 8वां दिन है, ये 15 तारीख को 15 मार्च 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ एक हफ्ते तो भी ज़्यादा हो गया है। देर इज़ नो FIR नो DDR, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂ ਮਾਜਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ NGO ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਈਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਭਈਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ASI ਹੈ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਮਾਜਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵਜਵਾਨਾ। ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ जी वाल देखा, उन्होंने मैंने देखा, कह रहा तू कौन है, गुंडा है तू, गुंडा बनेगा। ऐसे आते आते उन्होंने मेरे को पहले मोड़ा मारा और अपने आप ही उन्होंने इशू बनाना शुरू कर दिया, आप लड़ने आए हो, गुंडे बुला रखे हैं। और मैंने ऐसी, जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला जल्दी से मेरी अपने फोन से मेरी वीडियो बनाओ, जिनका नाम गोविंद था। गोविंद और मुझे उसी टाइम मारते हुए अंदर अपने कमरे में ले गए, हमारे फोन छीन लिए और सेवा सिंह जी ने बोला कि जब तक मैं नहीं बोलता मारो इनको दबकर। और वो उन्होंने मारना शुरू किया। मैंने विद्रोह किया, विद्रोह के बाद उन्होंने, विद्रोह के साथ साथ उन्होंने और मारना शुरू किया मेरे। फिर मैंने विद्रोह किया तो मैंने उन्हें बोला भी मेरी पीठ पे मत मारो जी, जहाँ मर्जी मार लो। मेरी पीठ पे मेरा L4 L5 का इलाज चल रहा है, मैं थेरेपी ले रहा हूँ। उनके एक कांस्टेबल ने वहीं जाकर मुझे 4-5 मुक्के मारे हैं जी, नॉन स्टॉप मेरे सेंटर ऑफ दी बैकबोन जो है वहां पर। उसके बाद फिर मैंने विद्रोह किया, मेरे कपड़े उतरवाए गए, मेरी पैंट उतरवाई गई, मुझे पैंट उतार के मारा गया। मेरे साथी को भी सेम, जिनका नाम गोबिंद है, उसको मारा गया। और बहुत अग्रेसिव थे। मैंने बोला था कि कोई भी नहीं बचेगा जब मैं इस कमरे से निकलूंगा। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ? सर कमरे में जब मुझे मार रहे थे, मैंने बताने की कोशिश की कि सर समझ तो लो, जान तो लो कौन है हम, तेरे जैसे 10 आते हैं, 10 को रोज मारता हूँ। ये उनकी लैंग्वेज थी। ये सेवा सिंह जी ने क्या सीगा, वो सारे इतने अहंकारी पुलिस वाले से जी, वो कहते असि रोज मारते हैं इदा दे। उनको कोई लेना देना नहीं था हम किस बैकग्राउंड से क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। वो मुझे बिल्कुल विश्वास है उनका मेडिकल होगा तो सूखा नशा सबने किया होगा जी, सब ने। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो एक साइको होता है, बिकॉज आई डिड माई मास्टर्स इन सोशल वर्क, आई एम अ प्रोफेशनल सोशल एक्टिविस्ट। काउंसलिंग हमें भी सिखाई जाती है, तो मेंटली भी ठीक नहीं था उनमें से कोई भी। तो मैं मानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर चाहे जितना भी कड़क हो, वो ऐसा नहीं कर सकता जैसा उन्होंने। कुछ खाया पिया तो सबने था जी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरा मेडिकल करवाया गया जी। मेरा मेडिकल भी प्रॉपर डॉक्टरां ने नहीं किया है। उस मेडिकल में साफ मेरी आंखों का निशान नहीं है, मेरे फ्रैक्चर है जी, वो मेंशन नहीं किया गया, इग्नोर किया गया। डॉक्टर्स की मिली भगत है जी, बिल्कुल ये क्लियर है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ से भी? यस बिल्कुल बिल्कुल ये होगा, क्योंकि वो एरिया जो हॉस्पिटल 32 हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल, वो वही उन पुलिस वालों के अंडर ही होता है। उनका डेली
वहां आना जाना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा जब उन्होंने मेडिकल नहीं किया, फ्रैक्चर नहीं मेंशन किया था हफ्ते तक, कल मेरा बहुत पेन हो रही थी, तो मैं उसी हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर बैठी थी मेडिकल वार्ड में, मैं गया हूं अपनी आइडेंटिटी चश्मा लगा के छुपा कर खुद को, मैंने बोला जी मैं सीढ़ियों से गिर गया हूं, मेरा नाम ये है। उन्होंने मेरा इमरजेंसी में कार्ड बनाया, मेरा एक्सरा करवाया उसी डॉक्टर ने, वही मशीन ने, वही सब कुछ सेम, और उसमें मेरा फ्रैक्चर आया, और देखिए जी आज पट्टियां बांधी हुई हैं, फ्रैक्चर डिक्लेयर भी किया। अगर मैं वही पुलिस वाला लेकर जाता कि केस था तो फ्रैक्चर आज तक डिक्लेयर ना करते। सेम रिपोर्ट ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ हुण आ गया, पहला भी सी, पहला लिखिया नहीं सी, ना मन्ने सी, ना मेरी पट्टियां की सी जी, प्लास्टर नहीं किया सी। कल मन गए ने, क्योंकि जब मैं गया कि मैं सीढ़ियों से गिरा हूं और मैंने थोड़ी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी अपनी, फेस मेरा सिमिलर नहीं लग रहा था इसलिए। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं इंसाफ की मांग करता हूं। टोटल सबसे पहले 4 लोग थे, जिनको 3 लोगों को इन्होंने लाइन हाजिर किया है और एक को ये बचा रहे हैं, आई डोंट नो। उसमें से सेवा सिंह जी को मैं नाम से और चेहरे से पहचानता हूं, बाकी इन्होंने जो बोला 2 को लाइन हाजिर किया, ना मुझे दिखाए गए ना बताया गया कि यही व्यक्ति हैं। अभी तक नो FIR, नो DDR, कुछ भी नहीं है। DSP 19 तारीख को मेरे घर आए थे, बयान लेकर गए हैं, बस कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। आपको भी पता है, आप सारा दिन फील्ड में रहते हो, यदि यही काम किसी इंसान से, नॉर्मल इंसान से होता, पर्चा पहले होता और कार्रवाइयां बाद में चलती इनकी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अपने पुलिस वालों को बचाया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस हमेशा बोलती है वी केयर फॉर यू, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं नेशनल अवार्डी हूँ, थोड़ा सा हम लोगों का अच्छी नेटवर्किंग है, सब साथी हैं हमारे, तो ये हाईलाइट हो गया, आप जैसे अच्छे न्यूज चैनल की वजह से हाईलाइट हो गया। अदरवाइज ये रोज लोगों को मारते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस का आज आप रिकॉर्ड देख लो, कहीं ना कहीं किसी महिला पर हाथ डाल रहे हैं, कभी किसी गरीब पर मार रहे हैं। इनका डेली है, ये तो पर्दे के पीछे करते थे, ये जो आज पर्दे के सामने इनका घनौनी जो हरकतें हैं, ये सब आ गई। SSP मैडम को बिल्कुल नहीं पता क्या चल रहा है शहर में। आप बिना मतलब से, मैं जिस गांव में रहता हूं या जहां मुझे को पता है, होटलों में आपके लिए कलेक्शन करने के लिए आपके लोग जाते हैं डेली, कितना क्राइम है, आप क्रिमिनल्स को हाथ नहीं पाते हो आप बिल्कुल भी न। जिन लोगों की बेचारे जिनकी कोई कसूर नहीं है, इवन मेरा ही क्या कसूर था, मैं तो पेन और पेपर का सपोर्ट करने गया था किसी को, मैंने किसी पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं किया। आई एम अ प्रोफेशनल एंड वेरी एजुकेटेड, सो मैं इतना देश विदेशों में जाता हूं, क्या मुझे इतना नहीं मालूम किसी यूनिफॉर्म वाले की यूनिफॉर्म को टच करने का कितना बड़ी चीज है? क्या मैं समझता नहीं हूं इन सब चीजों को? हम हमेशा ही अपनी देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़े हुए हैं, कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं, पर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये मेरे लिए, मेरी सोच से बहुत बाहर है जाकर। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि हमारे देश में ऐसा होगा। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ SSP DSP ਜਾਂ SP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैं SSP मैडम को अराउंड 18 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ने कहा जी तो आपका केस है, हम लोग जो DSP को मार्क कर रहे हैं। DSP जी लग गए थे, वो भी आए, उन्होंने भी किया, उन्होंने पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मैं लगा हुआ हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, ये सब चीजें हैं। पर मेरा ये है कि आपकी कार्रवाई तो ठीक है, अब कम से कम FIR जो होती है, FIR तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, आप वही नहीं लॉन्च कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है? वो तो सबके लिए सेम प्रोटोकॉल है। क्या आप, सीधी बात है, डायरेक्शन ये इन्होंने चंडीगढ़ पुलिस ने डायरेक्ट कर दिया कि आप अगर कोई आम इंसान हमारे पुलिस वालों के साथ करेगा तो हम 6-7 पर्चे दे देंगे, अगर हमारे वालों से कुछ हो जाता तो हम इंक्वायरी के नाम पर सब कुछ होल्ड पर रख देंगे। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल फील हो रहा है सर, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये क्या कहते हैं, आपको भी पता है लाइन हाजिर क्या होता है, इट इज वेरी बेसिक प्रोटोकॉल ना, कि ये तो कोई इनका एम्प्लॉय वैसे ही कोई कहना ना माने तो कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर बेड पर पड़ा हूँ, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, बेल्टों के सहारे मुझे लगना पड़ रहा है। आज मेरी एक बाजू भी चली गई, अब 2 हफ्तों तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा, 2 से 3 हफ्ते तक, आप बताइए। और वो लोग आराम से अपना बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। सन्ने में भी आया था, थाने में भी दिखे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल, आई एम टोटली रेडी फॉर कोर्ट। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, सिर्फ मुझे अपने मेरे एडवोकेट से मीटिंग हो चुकी है, सारे पेपर तैयार हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ कोर्ट नहीं, मुझे अमित शाह जी के पास जाना पड़ा, PM के पास जाना पड़ा और ह्यूमन राइट्स के पास जाना पड़ा, दिल्ली जाके बैठना पड़ा, मैं देर नहीं लगाऊंगा जी। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, उनको कुछ नहीं पता था बैकग्राउंड का, पुलिस वालों को। और मेरे को भी पता है कि हम लोग वैसा नहीं है कि हाँ कहीं जाकर अपनी छाती जोड़ी कर दें जी, मैं तो मेरे को तो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, ना ये हमारा नेचर है, ना ये हमारी वैल्यूज है। हम सभी, एक कोई सोशल एक्टिविस्ट होगा, कोई प्रोफेशनल होगा तो वो बड़ा हम्बल रहता है हमेशा, और हम्बल तरीके से ही जाता है। पर हमने समझाने की कोशिश करी। पहली बात है, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई भी हो, आप अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पुलिस वालों का, कि पहले समझे तो सही कि किस बैकग्राउंड से कोई आया, आप ऐसे किसी को पकड़ के मारना शुरू कर दोगे, ये तो बात कहीं नहीं कुछ हुई। इसका मतलब आज के बाद आपने सिर्फ मेरे हाथ तोड़कर
मुझे व्हीलचेयर पर नहीं बिठाया, आपने पूरे सिस्टम को व्हीलचेयर पर बिठा दिया है। आपने उन लोगों को व्हीलचेयर पर बिठा दिया जो हमारे देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबको साथ देना चाहते हैं। आपने खुद, मुझे ही नहीं, अपने सिस्टम को बिठा दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने खुद को व्हीलचेयर पर बिठा दिया है ऐसा करके। मतलब कि आज के बाद कोई किसी का साथ नहीं देगा। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा सर, अगर ऐसी 2 लड़कियों की मदद करने के लिए मुझे मार ऐसे पड़ी है, आगे भी पड़ेगी, अगर आगे भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो रोज खाएंगे हम। आप लगा लीजिए जोर जी, अगर आपको ऐसे मारना है किसी की मदद करने के लिए, तो अगर रोज मदद करनी पड़ेगी तो रोज खाएंगे मार। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਵਾਰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤੁਲਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।